شام سے ذکر نبی ہو، شام سے ہے میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، ذکر نبی ہو، شام سے ہے میلاد، شام سے ذکر نبی ہو، شام سے ہے میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، ذکر نبی ہو، شام سے ہے میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، صلی اللہ سب مل جل کر، صلی اللہ سب مل جل کر، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، صلی اللہ سب مل جل کر، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ اے بات صبا کیا تو اے بات صبا کیا تو نے سنا، اے بات صبا کیا تو نے سنا، سرکار جو آنے والے ہیں، اے بات صبا کیا تو نے سنا، سرکار جو آنے والے ہیں، اے بات صبا کیا تو نے سنا، سرکار جو آنے والے ہیں، کلیان بچھانا راہوں میں، کلیان بچھانا راہوں میں، ہم آج بچھانے والے ہیں، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد۔ اب جلوس محمدی جامع مسجد کے پاس جو مرکزی دفعہ اہل سنت دارالفضان سیدنا اورنگ آباد سے چل کر پہنچا ہے، جس کی صدارت و قیادت حضور امام ملت اولاد غوث اعظم فرما رہے ہیں۔ اب ان کے دعوت میں حضور امام ملت کے شہزادے حضرت علامہ احمد القادری المعروف اظہری سرکار آپ کے بیچ تشریف لا رہے ہیں، جو آمد نبی، پیدائش نبی، ولادت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کی مبارک موقع پر رسول اللہ کی جنم دن اور ان کی سیرت کے تعلق سے رسول اللہ کی جیونی اپنے بیان کے مطابق پیش کریں گے، آپ سنیں گے، سماعت کریں گے اور بارن کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور امام ملت زندہ باد، زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا النبی محمد ابن عبداللہ نورا من نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضراتکم یا ایہا السادہ، انا افتخر افتخارا لاننی اکتب جميع الناس بحضور فضیلت الشیخ الامام المفتی السید اصغر امام القادری زاویہ آستانہ عالیہ قادریہ امجھر شریف۔ حضراتکم یا ایہا السادہ، انا اقدم لکم آیتا واحدتا التی اوردت فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قال سبحانہ تعالی فی کتابہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کے اس پرکیف اور مسرت موقع پر آمد رسول پر اس جلوس کی قیادت جانشین غوث اعظم نبیر سید الہند حضور امام ملت علامہ مفتی شاہ اصغر امام القادری قبلہ کی قیادت و سرپرستی میں یہ جلوس شہر کی شاہراہوں پر رواں دواں ہے۔ حضرات، جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے نمرود ظالم و جابر بادشاہ نے موت کا پروانہ جاری کیا، چنانچہ نمرود کے فوجیوں نے ایک آگ جلوائی۔ آگ کا دائرہ مفسرین لکھتے ہیں 9 کلومیٹر پر مشتمل تھا، جدھر دیکھیے آگ ہی آگ تھی، تا حد نگاہ آگ تھی۔ جب آگ 9 کلومیٹر لمبی ہوگی تو آگ کی حرارت کتنی دور تک جائے گی؟
आग की तपिश कितनी दूर तक जाएगी। चुनांचे इलाके के जानवर, चरिंद परिंद, हैवानात इलाका छोड़कर भागने लगे। नमरूद की आग से बचने के लिए इलाका से राह फरार इख्तियार करने लगे। लेकिन बड़े बूढ़े जानते होंगे, एक हुदहुद परिंदा था जो हवा में उड़ता है। हुदहुद परिंदा आग की तरफ जाने लगा। बोलना जरा जोर से जिसे मौला ने ज़बान अता किया है, इसलिए कि सर न झुकाना ये फख्र का वक्त है, ये रोने का वक्त नहीं है। इसलिए कि सुभान अल्लाह वही बोलता है, हाथ उठता ही उसी का है जिसे सज्जदे कौनैन खैरात अता करे। मुस्तफा खैरात बात रहा हो, जिसे मुस्तफा जाने रहमत खैरात न दे, उसके तो मस्जिद में हाथ में उठ के मौला की मजलिस में हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुदहुद परिंदे से पूछा, हुदहुद कहाँ जा रहे हो? हुदहुद परिंदे ने कहा, आग बुझाने जा रहा हूं। कहा, आग कैसे बुझाओगे? कहा, पानी से बुझाऊंगा। कहा, हुदहुद पानी कहां से लाओगे? हुदहुद ने बरमला जवाब दिया, पानी मेरी चोंच में है, पानी मेरी चोंच में है। अब सड़क पर चलने वाले व्यक्ति ने पूछा, राह गुजर पर चलने वाले शख्स ने दरियाफ्त किया, हुदहुद क्या तुम समझते हो कि तुम अपनी चोंच के एक कतरे आग से, पानी की एक बूंद से, तुम 9 किलोमीटर लंबी आग जिसे नमरूद ने जलाया है, इब्राहिम खलीलुल्लाह को नजर आतिश करने के लिए, क्या तुम उसे बुझा सकते हो? हुदहुद परिंदे ने कहा, ये बात तो मैं भी जानता हूं कि मैं 9 किलोमीटर लंबी आग को पानी के एक कतरे से बुझा नहीं सकता। तो कहा, सड़क पर चलने वाले शख्स ने, जब तुम जानते हो 9 किलोमीटर लंबी आग जिसे नमरूद ने जलाया है, इब्राहिम को नजर आतिश करने के लिए, जब तुम 9 किलोमीटर लंबी आग को पानी के एक कतरे से बुझा नहीं सकते, तो इसमें पानी क्यों डाल रहे हो? पानी डालकर क्या साबित करना चाहते हो? हुदहुद ने बरमला जवाब दिया कि मैं ये बात जानता हूं, 9 किलोमीटर लंबी आग में पानी का कतरा डालने से मैं 9 किलोमीटर लंबी आग जिसे नमरूद ने जलाया है, इसे मैं बुझा तो न पाऊंगा, लेकिन 9 किलोमीटर लंबी आग में पानी की बूंद डालने से दुनिया को पता तो चले हम खलीलुल्लाह इब्राहिम के मानने वाले हैं। के जश्न में मुस्तफा जाने रहमत खैरुल बरिया साहिब लौलाद अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा के जश्न विलायत में इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में जश्न नबूवत में जो शामिल है। किसी ने पूछा अल्लामा अब्दुल कुद्दूस से, ज़ियाउल मुस्तफा खां से, किसी ने पूछा पत्तन कादरी से, सदर आलम कादरी से, मुफ्ती अफसर रजा से, हाफिज गुलाम रसूल से कि तुम रसूल के जश्न में जा रहे हो, इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में तुम बारिश में भीग रहे हो, तुम्हें जलसे में जाने से क्या फायदा होगा? अल्लामा मुफ्ती अफसर रजा ने कहा, हमें जलसे में जुलूस में जाने से कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम साहिबे लौलाद के मानने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुज़ूर मिल्लत, अज़हरी सरकार, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुज़ूर की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, आज हमने ऐसा कोई नहीं है जिसने रसूल की रसालत पर कोई सौदाबाजी किया हो। हमने कोई ऐसा नहीं है कि जिसने पैसे लेकर मुस्तफा जाने रहमत के जश्न विलायत पर कोई सौदागरी की हो। हम में से जितने भी कादरियों का आज हुजूम रसूल का जश्न मनाने के लिए औरंगाबाद की सड़कों पर जो है विराजमान है, हम रसूलुल्लाह की रसालत को इकरार करते हैं, रसूलुल्लाह की खातमियत का इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में इकरार करते हैं। अरे तुम्हें तो इमाम हसन के कातिलों का आज तक पता नहीं चला, 1400 साल का अरसा बीत गया, आज तक तुम ये नहीं पता लगा पाए कि हसन इब्ने अली को किसने कत्ल किया। हम आज के कातिल को भी जानते हैं और 1400 बरस पहले के कातिल को भी हम पहचानते हैं। आज लोगों ने अफवाह फैलाई, अफवाह उड़ाई, तो जुलूस में इंतजामात बहुत ज्यादा है,
मजमा कल होगा, लेकिन चश्मे फलक हैरत की निगाह से देख रही है कि बारिश होने के बावजूद, बरसात होने के बावजूद इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में मुसलमानों का चम्मे गफीर खैरुल फरीदा की आमद का जश्न मनाने के लिए औरंगाबाद की सरजमीन पर उमड़ पड़ा है। हजरात, आज एडवाइस जारी की जाती है, आज कहा जाता है आप पंडाल में जुलूस निकालिए, आप जो है अपने घर में जुलूस निकालिए, आप सड़कों पर जुलूस क्यों निकालते हैं? आप औरंगाबाद के बाजारों में मुस्तफा जाने रहमत का जश्न क्यों मनाते हैं? जाकर पूछो खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब से। उमर इब्ने खत्ताब फरमाते हैं कि जब इमाम हसन ने मुस्तफा जाने रहमत से कहा, खैरुल फरीदा फातह अरब अदम से कहा, पैगंबर से इमाम हसन ने कि हमें सैर कराइए, जब कहा इमाम हुसैन ने कि हमें पैगंबर सैर कराइए, मुस्तफा जाने रहमत ने अपने नवासों को मदीने के बाजारों में 290 पर बैठा कर सैर कराई। अगर मुस्तफा जाने रहमत अपने नवासे हसन इब्ने अली को, हुसैन इब्ने अली को अगर पंडाल में सैर कराते, घर में अगर सैर कराते, तो हम जुलूस भी घर में निकालते, पंडाल में जुलूस रखते। क्या करें? सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा है, हसनैन की इज्जत के लिए, अली के वकार के लिए, इमाम मिल्लत की सरपरस्ती को मोहम्मद मुस्तफा के हदीस पर अमल करते हुए बाजारों में लेकर आ गए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जब मक्का फतह हुआ, हमारी सोसाइटी में दो तरह के लोग विराजमान हैं। एक तो वो है कि जब मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत व शान पर हमला हो, जब मुस्तफा जाने रहमत के वकार पर हमला हो, तो अपने खानदान को मुस्तफा के नामोज के लिए लहूलुहान कर देते हैं। जैसा कि हुसैन इब्ने अली ने करबला की धरती पर मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत की खातिर खानदान को लहूलुहान कर दिया। और दूसरे तरह के वो लोग हैं हमारी सोसाइटी में कि जब उन पर कोई आपदा आ जाए, उन पर कोई मुसीबत आ जाए, जब उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा आ जाए, तो अपनी जात को बचाने के लिए इस्लाम को आगे कर देते हैं। कहते इस्लाम खतरे में आ गया है, इस्लाम और मुसलमान खतरे में आ गया है। हजरत साहिबे सिर्र शहादतैन ने लिखा है, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, साहिबे सिर्र शहादतैन तक में तराज है कि अगर ईसा पैगंबर